We are learning chapter number 12 about loop constructs और इसके कुछ topics from chapter number 12 which are left. We will discuss those topics today. So the very first topic is about counter control. Okay, difference between for loop and while loop. For loop और while loop में क्या difference है? इससे पहले हमने while loop और do while loop का difference पढ़ा था. But today we are going to learn what is the main difference between for loop and while loop. We have discussed both of the loops yesterday. For loop की भी syntax उसकी working हमने discuss की थी, while loop का भी syntax और working हमने discuss की हुई थी. So what is the difference between both of these? For loop is used when the number of iterations are known before the loop is entered. तो for loop ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल होती है कि जहां हमारे पास नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता है, लेकिन the while loop is used when the number of iterations is not known at the beginning of loop. Clear? तो while loop ऐसी जगह पे भी इस्तेमाल हो सकती है कि जब हम जहाँ पे हमें कितनी नंबर ऑफ iterations होंगी वो कंडीशन की वैल्यूएशन पे बेस कर रहा होगा, हमें पहले से पता नहीं होगा. ठीक है. सो फॉर लूप जहाँ पे हमें क्लियर कट पता होगा that we have to do this much iterations, there would be we would be using for loop. और जहाँ पे हमें ये क्लियर नहीं होगा कि इतनी iterations होगी, वहाँ क्या होगा, while loop इस्तेमाल हो सकती है. Suppose the user wants to calculate the salary of 100 employees. Okay, तो यहाँ पे हम for loop इस्तेमाल कर सकते हैं. In this situation for loop is the best option. While loop भी इस्तेमाल तो की जा सकती है, लेकिन suppose a loop inputs a number from the user and then displays its square. अब कोई भी number user से input लेना है और उसका square जो है वो print करना है. After printing the square, it then asks whether he wants to repeat it or not. ठीक है, क्या ये process जो है इसको repeat करना है या नहीं? That would be asked later on. Fine. So in this type of scenario, जहाँ पे iterations user decide करता है. In this situation, the iterations are decided by the user. So while loop is better. अब user कौन है? जो हमारे प्रोग्राम को यूज कर रहा होगा. ठीक है, जो हमें इनपुट दे रहा होगा, जैसे हम इनपुट ले रहे होंगे और जिसको आउटपुट शो की जा रही होगी. क्लियर? सो फॉर लूप में हमें ऑलरेडी पता होता है कि कितनी आइट्रेशंस होती हैं, और वाइल लूप में हमें नहीं पता होता ऑलरेडी, वो यूजर पे डिपेंड कर रहा होता है कि यूजर जो कहे उसके अकॉर्डिंगली फिर आइट्रेशंस जो है वो की जाती है. The next topic is of counter control and sentinel control variable. Let's see कि sentinel control loop क्या होती है और counter control loop क्या होती है. We have learned about counter control loops. Sentinel control loop. Sentinel control loop depends on special value known as sentinel value. अब ये कोई एक वैल्यू स्पेसिफाई कर दी जाती है कि जब तक ये वैल्यू रीच नहीं होती लूप चलती रहे. जैसे ही वो वैल्यू रीच हो जाती है तो लूप टर्मिनेट हो जाती है. ठीक है, यहाँ पे जैसे हम फॉर लूप में पढ़ते हैं कि हमारा एक वेरिएबल इनिशियलाइज होता है, फिर उसकी कंडीशन इवैल्यूएट होती है, फिर वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है. तो यहाँ पे सिंपली सेंटिनल कंट्रोल लूप जो होती है उसमें हमें सिर्फ ये करना होता है कि हमें वो एक वैल्यू स्पेसिफाई कर देनी होती है. ठीक है, अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कराना होता, सिर्फ एक सेंटिनल वैल्यू जो है उसको हम दे देते हैं. तो जब तक वो वैल्यू नहीं रीच होती या वो वैल्यू नहीं आती, मैच नहीं करती, तब तक हमारी लूप चलती रहती है जब तक वो वैल्यू आती है. ठीक है, लेकिन काउंटर कंट्रोल वेरिएबल में तो काउंट्स होते हैं ना, कि इतनी बार आपने काउंट करके इतनी बार कंप्यूट करना है या रिपीट करनी है स्टेटमेंट्स. The loop terminates when the sentinel value is encountered. तो जो sentinel control loops हैं ये खत्म कब होती हैं? ये तब खत्म होती हैं जब वो sentinel value encounter होती है, ये sentinel value पे पहुंच जाता है हमारा control. अब वो sentinel value क्या होती है? Okay, इससे पहले these types of loops are also known as conditional loops. Sentinel control loops या इनको conditional loops भी कहा जाता है. अब देखते हैं sentinel control value क्या होती है. For example, a loop may execute while the value of a variable is not -1. तो अब वो लूप ऐसी सारी वैल्यूज के लिए चलेगी जो -1 नहीं है. जैसे ही -1 वैल्यू आएगी तो फिर हमारी लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी. Here -1 is the sentinel value that is used to terminate the loop. अब यहाँ पे ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें दे दी गई है और हमसे ये कहा गया है कि जब ये वैल्यू आएगी तब हमारा प्रोग्राम खत्म होगा, उससे पहले जितनी भी और वैल्यूज आती हैं हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा. So such scenario, this value is known as sentinel value. ठीक है. The number of iterations of sentinel controlled loop is unknown. अब ये देखें जैसे हमने while loop में भी पढ़ा कि वहाँ पे भी number of iterations जो है वो unknown होती हैं. तो while loop क्या है? Sentinel controlled loop है.
अब हमें ये नहीं पता कि यूजर कितनी वैल्यूज एंटर करेगा और उसमें से कौन सी वैल्यू -1 होगी, ठीक है। अब हो सकता है यूजर 10 वैल्यूज एंटर करे, उसके बाद 11th वैल्यू -1 हो सकता है यूजर 100 वैल्यूज एंटर करे, उसके बाद 101 वाली जो वैल्यू है वो -1 हो, ठीक है। जो हमने ऊपर सिनेरियो देखा कि जब -1 आए, सेंटिनल वैल्यू ये वाली आए, तो तब लूप टर्मिनेट होगी, ठीक है। It depends also in such scenario we do not know the number of iterations. It depends on the input from the user. ये किस पर डिपेंड करता है, जो यूजर इनपुट करेगा उस पर। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा सिनेरियो कि जिसमें -1 जब तक नहीं आता वो लूप चलती रहे, ठीक है। लूप की बॉडी में कोई प्रिंटफ स्टेटमेंट भी हो सकती है, कोई आउटपुट इनपुट स्टेटमेंट भी हो सकती है, ठीक है। वो बॉडी से कंसर्न नहीं है। अभी हम ये देख रहे हैं कि कुछ लूप्स होती हैं जो काउंटर कंट्रोल होती हैं और कुछ होती है सेंटिनल कंट्रोल होती हैं। जो सेंटिनल कंट्रोल लूप्स होती हैं उसमें हमें ये नहीं पता होता कि वो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, उसकी एग्जीक्यूशन कितनी बार होगी ये यूजर की इनपुट पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जो है, काउंटर वेरिएबल की जो आइटरेशंस हैं वो हमें पहले से पता होती हैं कि ये हमारी लूप इतनी बार एग्जीक्यूट होती है। जैसे सेंटिनल कंट्रोल लूप में हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं कि एक ऐसी लूप जिसमें जब तक -1 नहीं आ जाता उस वक्त तक वो लूप एग्जीक्यूट होती रहती है। Suppose the sentinel value to terminate a loop is -1. If the user enters -1 in first iteration, अगर जो user है जो हमारा प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहा है अगर वो पहली बार में ही -1 एंटर कर देता है तो फिर तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, क्लियर। द लूप विल एग्जीक्यूट ओनली वंस, उसकी बॉडी नहीं। बट इफ द यूजर एंटर्स -1 आफ्टर एंटरिंग मेनी अदर वैल्यूज द नंबर ऑफ आइटरेशंस विल वेरी अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर जो -1 वैल्यू है वो यूजर पहली बार में नहीं बल्कि बहुत सारी वैल्यूज एंटर करने के बाद किसी रैंडम नंबर पे जाके जो है उसको एंटर करता है, तो फिर नंबर ऑफ आइट्रेशंस या कितनी बार वो लूप रिपीट हुई है ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा होगा। इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द number of it will be depending upon the values given by the user. A sentinel value is commonly used with while and do while loops. तो ऐसी सिनेरियोज कहाँ आ सकते हैं, कौन से लूप्स में आ सकते हैं, while loop में और do while loop में। जबकि फॉर लूप की हमने टेक्स्ट में पढ़ा था कि फॉर लूप क्या है, एक काउंटर कंट्रोल वेरिएबल है। Okay, in which situations the sentinel control loop can be used? The sentinel control loop can be used in the following situations. A loop that inputs the marks of students until a negative number is entered. एक ऐसी situation, एक ऐसी loop में कि जब तक कि जिसमें हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स को इनपुट लेना है और कब तक इनपुट लेना है, जब तक कोई नेगेटिव मार्क ना आ जाए, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि कब तक नेगेटिव मार्क आएगा, पहली बार में कोई नेगेटिव नंबर आ जाएगा या 10वीं बार में कोई नेगेटिव नंबर आएगा या 100 बार में कोई नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक है। सो इन सच सिनेरियो वी कैन यूज अ लूप व्हिच इज सेंटिनल कंट्रोल लूप। और सेंटिनल कंट्रोल लूप्स कौन कौन सी है, व्हाइल एंड डू व्हाइल। A loop that inputs different characters until the character z is entered. अब एक ऐसी लूप, एक ऐसी सिचुएशन है, ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें यूजर से कैरेक्टर्स इनपुट लिए जाते हैं, ठीक है। और वो एंड कब तक होंगे, कब तक वो लेती रहेगी वो लूप, जब तक z एंटर नहीं हो जाता। अब हो सकता है यूजर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में abc ना कर रहा हो एंटर, वो डिसेंडिंग में कर रहा हो तो वो सबसे पहले z एंटर कर दे, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो सिक्वेंशली अल्फाबेट्स को एंटर ना करे, वो ए के बाद फौरन से जी कर दे, क्लियर। तो हमें नहीं पता कि कितनी आइट्रेशंस होंगी, यूजर किस सीक्वेंस से वैल्यूज इनपुट करेगा। तो ऐसे सिनेरियो में हम एक वैल्यू रख देते हैं कि जब ये वैल्यू आ जाए तो फिर आप एंड कर देना, क्योंकि लूप अगर एंड ना हो तो हमारा प्रोग्राम जो है वो अगर लूप को हम प्रॉपरली एंड नहीं करते तो हमारा प्रोग्राम तो कभी खत्म ही नहीं होगा, हमारा कंपाइलर तो वो हमेशा उसी को एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है। तो फिर हम बाकी प्रोग्राम्स कैसे कर सकेंगे। A loop that continues to read a string until a period this dot is found. अब एक ऐसी तरह की लूप कि जिसमें string reading होती है। string हम जानते हैं collection of characters is known as a string which are enclosed in double quotation marks. So एक ऐसी लूप लगाई हुई है, एक ऐसा प्रोग्राम लिखा हुआ है कि जिसमें लूप के जरिए से स्ट्रिंग वैल्यूज रीड की जा रही हैं। तो अब वो स्ट्रिंग वैल्यूज कब तक रीड करनी है, जब तक डॉट या पीरियड ना आ जाए, ठीक है। तो ये सारी वो सिचुएशंस हैं, वो सारे सिनेरियोज हैं कि जिसमें हम सेंटिनल कंट्रोल लूप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, so now let's see the difference between counter controlled and sentinel control loops. Counter control. The counter control loop depends on the value of a variable which is known as counter variable, जैसे हमने for loop में पढ़ा भी था। और कौन सी loop को counter control loop कहा जाता है, for loop को counter control loop कहा जाता है।
The value of counter variable is incremented or decremented each time the body of the loop is executed. Counter variable की वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट होती है? जब बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसी के अंदर जो है उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला पोर्शन भी होता है, तो उसके रिजल्ट में हमारे काउंटर वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होती है. This loop terminates when the value of counter variable reaches a particular value. तो यहाँ पे counter variable की वैल्यू जब उसकी end या maximum वैल्यू तक पहुंच जाती है तो loop automatically terminate हो जाती है. लेकिन sentinel control loop में क्या होता है? Sentinel control loop depends on special value which is known as sentinel value. जैसे अभी हमने 3 scenarios discuss किए, z ना आ जाए, period ना आ जाए, या full stop जिसे हम कहते हैं वो ना आ जाए, -1 वाली वैल्यू जो है जब तक आ जाए उस वक्त तक loop execute होती रहे, and so on. There can be many scenarios like this. The loop terminates when the sentinel value is encountered. अब counter control में कब terminate होती है? जब counter control variable जो है उसकी value ending value पे पहुंच जाती है. लेकिन sentinel control loop में loop कब terminate होती है? कि जब हमारी condition में sentinel value match हो जाती है. These types of loops are also known as conditional loops. For example, a loop may execute while the value of a variable is not -1. Here -1 is the sentinel value that is used to terminate the loop. So this is the difference between counter control variable and sentinel control variable. उससे पहले हमने counter variable क्या होता है, sentinel variable क्या होता है वो पढ़ लिया, and before that we learned about difference between for loop and while loop. So the very second last topic of chapter number 12 is continue statement. Continue statement क्या है, किस लिए इस्तेमाल होती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, ये देख लेते हैं. The continue statement is used in the body of the loop. कहाँ इस्तेमाल होती है? लूप की बॉडी के अंदर. ठीक है. It is used to move the control to the start of the loop body. अब ये कैसे सिचुएशन में इस्तेमाल होती है कि जब हम लूप की बॉडी में इस्तेमाल करेंगे इसको, तो इसके रिजल्ट में क्या परफॉर्म होगा? इसके रिजल्ट में कंट्रोल लूप की चाहे 10वीं लाइन पे है, लूप बॉडी में चाहे 10वीं लाइन पे, लेकिन वो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी पे जंप कर जाएगा. तो जब भी हमें अपना कंट्रोल या जो है लूप बॉडी उसका जो एग्जीक्यूशन हो रही होगी, तो किसी खास या पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम उसको वापस स्टार्ट पे लेके जाना चाहेंगे तो उसके लिए हम कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं? हम कंटिन्यू स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं. When this statement is executed in the loop body, the remaining statements of current iteration are not executed. तो जब कंटिन्यू स्टेटमेंट इस्तेमाल हो रही होती है लूप के अंदर, और जहाँ पे ये इस्तेमाल हो रही होती है सिर्फ वहाँ तक वैल्यूज एग्जीक्यूट होती हैं या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, उससे नेक्स्ट जो है वो स्किप हो जाती हैं और कंट्रोल कहाँ चला जाता है? वापस लूप बॉडी के स्टार्ट पे. The control directly moves to the next iteration. फिर क्या होता है? अगली iteration या loop की अगली बारी जो है वो अगली दोहराए जाने वाली बारी जो है वो execute होना शुरू हो जाती है. Let's see how is it used. This is an example of using continue statement. सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल इंटीजर x इस्तेमाल हुआ है. ये x इंटीजर टाइप का वेरिएबल है. ये यहाँ पे इनिशियलाइज कराया गया है. कैसे इनिशियलाइज कराया गया है? 1 के साथ. और कहाँ तक इसने चलना है? इसकी एंडिंग वैल्यू क्या है? 5. और हम जानते हैं, हमने फॉर लूप की वर्किंग में डिस्कस की हुई है दैट it would start with for keyword and then there would be variable initialization. The other second step would be of condition. Then the third step would be of variable update. So starting from variable initialization, x, which is the variable which is declared at line number 1 of the program, that is being initialized to 1. And the step 2 is performed. यहाँ पे एक condition है, condition evaluate होगी. 1 is less than or equal to 5. Yes, we know 1 is less than or equal to 5. So condition is true, and as the result of being true condition, we used to jump to the body of loop. Body of loop में क्या है? पहले सबसे printf statement है. So printf statement is printing hello world on the screen and \n. ये escape sequence इस्तेमाल हुआ है. Escape sequences के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है. इससे next line पे क्या है? Loop body है ना? We are in the body of the loop. So first statement printf statement है. Second कौन सी है? Continue statement. और अभी हमने पढ़ा कि जहाँ continue statement इस्तेमाल हुई होगी वो क्या करेगी? एग्जीक्यूट होने पे वो कंट्रोल को वापस लाइन नंबर 1 पे ले जाएगी. क्लियर?
अब यहाँ दोबारा जो है वो एग्जीक्यूट होगा x प्लस प्लस, थर्ड स्टेप परफॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे अपडेट होगा हमारा वेरिएबल, अपडेशन के बाद यहाँ दोबारा कंडीशन चेक होगी, फिर अंदर आएंगे, फिर कंटिन्यू के बाद दोबारा वही होगा कि दोबारा फर्स्ट लाइन पे ले जाता है, फिर कंडीशन इवेल्युएट होगी, फिर लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, कंटिन्यू के रिजल्ट पे दोबारा यहाँ आ जाएंगे, इंक्रीमेंट होगा एंड सो ऑन, कब तक चलता रहेगा जब तक ये वैल्यू 5 रहती है। ठीक है, जैसे ही वैल्यू 6 होगी, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, नो कंडीशन फॉल्स होगी तो ये सारा स्किप हो जाएगा। यहाँ इसके बाद जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। The above example has two printf statements. One statement is before the continue statement, ये जो अभी हमने पढ़ी hello world वाली, और दूसरी printf statement कौन सी है, knowledge is power। तो चूंकि यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई है तो नॉलेज इज पावर वाली पे तो कभी जंप करेंगे ही नहीं, हमेशा यहाँ से जो है वो स्किप हो जाएगा। लेट्स सी हाउ। One statement is before the continue statement and one is after continue statement। जो स्टेटमेंट जो कंटिन्यू स्टेटमेंट से पहले वाली है printf कमांड, वो तो एग्जीक्यूट होती रहेगी लेकिन उसके बाद वाली कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। The second statement is never executed. This is because each time continue statement is executed and the control moves back to the start of the body. So knowledge is power, which is the second statement, it would never be displayed on the screen. So this is how continue statement works, and we have seen the example also. Last but not least topic is of break statement. Break statement क्या है, किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसको? Break statement is used in the body of the loop to exit from the loop. अब continue statement क्या करती है कि जहां वो यूज हुई है वहीं से कंट्रोल को लूप के स्टार्ट पे ले जाती है, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए इस्तेमाल होती है? अगर लूप में से एग्जिट करना हो तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। When this statement is executed in the loop body, the remaining iterations of the loop are skipped. जब ये statement execute हो जाती है तो loop की body में जितनी भी बाकी statements होती हैं वो skip हो जाती हैं और simply break हो जाता है control, और कहाँ चला जाता है? End of the program पे। The control directly moves outside the body and the statement that comes after the body, that statement is executed. Clear? Let's see the example of break statement. As you can see over here, integer x, यहाँ पे again for loop इस्तेमाल हुई है, that is starting from 1 and the ending value is 5 again, and the third step is of increment or variable update step actually. Then this is the body of the loop and printf. The first step statement is printf and that is written over here questioning. Clear? और उसके बाद जो है ब्रेक स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे जब आएगा कंट्रोल तो ये इसकी लूप की बॉडी टर्मिनेट हो जाएगी और फिर क्या होगा, लूप के बाहर जो भी बॉडीज है या जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट किए जाएंगे और ये वाला जो है वो स्किप हो जाएगा। तो दोबारा से गेटवे टू नॉलेज वाली जो स्टेटमेंट है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्लियर? यहाँ पे कंट्रोल जो है वो ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से बॉडी जो है रिमेनिंग बॉडी ऑफ द लूप वो स्किप हो जाएगी और आउटसाइड द बॉडी ऑफ लूप जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो दिस वाज अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, सेंटिनल कंट्रोल लूप, counter control loop, difference between counter control and sentinel control, and difference between loop, for loop and while loop. That's it for today's lecture.